It's my humble request to all of you ki please mute yourself because the whole session is going to be recorded. Dancing ji, please mute yourself. Dancing ji, we are getting voice from your side. Yeah. And now the session is going to be recorded, and one thing I would like to say ki in today's class we will talk about Anglo Saxon period. Anglo-Saxon period. Remember that when you talk about Anglo-Saxon period, already I told you it covers the period from 450 to 1066. 450 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक जो पीरियड कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं? एंग्लो सैक्सन पीरियड. जस्ट आई वांट टू नो, इज इट विजिबल? हैव यू enough light? Can anyone respond me? Okay. So what I want to say ki this is Anglo-Saxon period, and this Anglo-Saxon period it covers the time from 450 to 1066. Next point I want to tell you ki when I talk about this particular period, Anglo-Saxon period, then what the thing you have to remember. Number one point ki you have to remember that from the perspective of TGT and PGT you will get two more questions. You will get two questions. जो questions आपको मिलेगा दो मिलता है. सबसे जो पहला क्वेश्चन मिलेगा दैट इज व्हाट की बीओल्फ, BEOWULF. जो बीओल्फ है, बीओल्फ द फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश केम in this age. I have been writing all the points. You have to note down the points. Even I have also changed the particular जो उसका white board है उसको मैंने जो है एकदम बिल्कुल सीधे रखा हुआ, तो ये मुझे भी लिखने में आसानी हो रही है. So you will come to know कि Beowulf जो है ये आपका क्या है? The first epic in English. In English literature, the first epic in English came in this age. Second point कि Beowulf is an example of BEOWULF. Beowulf is an example of primary epic or traditional epic. TRADITIONAL. Traditional epic. Third point, the author of Beowulf is unknown. The author of Beowulf, BEOWULF, Beowulf is unknown. So remember that whenever I am I'm telling you about this age, Anglo-Saxon period, then it covers the period from 450 to 1066. 450 से लेकर 1066 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम एंग्लो-सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं. और ये जो पीरियड है जो एंग्लो-सैक्सन है, यू विल कम टू नो कि यहाँ से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस इंग्लिश का पहला जो एपिक है जो कि प्राइमरी एपिक था उसका नाम बीओल्फ है, और वह जो है इसी एज में आता है. और बीओल्फ जो प्राइमरी एपिक है, हमें पता है कि हम प्राइमरी एपिक को ट्रेडिशनल एपिक भी कहते हैं. ऑलरेडी आई हैव गॉन विद एपिक. जब मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ा रहा था तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में मैं एपिक पर गया था, पूरा मैं पहले लिया था. यू विल गेट कि दोस थिंग्स आर अवेलेबल देयर, वे चीजें वहां पर अवेलेबल है. So what I want to say कि you will come to know कि these are things, या ये सब चीजें. Beowulf the first epic in English literature came in this age. उसके बाद जो है क्या है? Beowulf is an example of primary epic. या किसका एग्जांपल है? प्राइमरी एपिक का या ट्रेडिशनल एपिक का एग्जांपल है. The author of Beowulf is unknown. जो Beowulf का author है वो क्या है? वो unknown है. So what point, number 2 point, number 3 point, you will get these 3 points and you will come to know कि really में क्यों इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब भी एपिक की बात होती है तो जो एपिक की शुरुआत तो वह इसी एज से होती है. अगर कभी भी क्वेश्चन आता है एपिक की शुरुआत किस एज से, में एपिक की शुरुआत किस एज से हुई है? एंग्लो-सैक्सन पीरियड से ही होती है. सो व्हाट आई वांट टू से कि यू हैव टू गो विद दिस पार्टिकुलर पॉइंट, यू हैव टू गो विद दिस एज. दूसरा चीज कि जब आप बीओल्फ के बारे में बात करते हैं
तो आप मुझे कैन यू टेल मी कि जो बियोल्फ है वह प्राइमरी एपिक है, तो प्राइमरी एपिक की क्या खासियत होती है, प्राइमरी एपिक की क्या पहचान होती है? मैंने आपको पहले बताया था कि जो एपिक है, एपिक क्या कहा जाता है? एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। आई विल नॉट राइट हियर बिकॉज़ ऑलरेडी आई हैव डन द होल लेक्चर इज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, इवन यू हैव also noted down those points again, but I'm just telling you important points ki why Beowulf, why Anglo-Saxon, and why these points are significant. So what I told you कि जो Beowulf है या जो है ट्रेडिशनल एपिक का एग्जांपल है, और ट्रेडिशनल एपिक का एग्जांपल होने की वजह से या साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि प्राइमरी एपिक का एग्जांपल होने की वजह से इसमें जो है ये हमें देखने को मिलता है कि एपिक जो होता है होता है एपिक का लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। जो एपिक है या क्या है, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स है। यू विल कम टू नो कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। और पूरी दुनिया में जो एपिक है उसको जो है कितने हिस्सों में बांटा जाता है? दो हिस्सों में। यू विल कम टू नो कि उसको दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा है? प्राइमरी एपिक, और प्राइमरी एपिक को ही हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल एपिक। और साथ ही साथ एक आपका लिटरेरी एपिक होता है, उस लिटरेरी एपिक को हम जो है सेकेंडरी एपिक भी कहते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, जो आपको समझने की कोशिश करना है, आपको जानने की कोशिश करना है। So what I want to tell you, what I want to say, you will come to know कि these are the things, these are the points which we have to follow, which we have to remember. Point में आपको इसलिए रखना है कि जो प्राइमरी एपिक है या जो प्राइमरी एपिक को जिसको हम ट्रेडिशनल एपिक कहते हैं, उसको जो है ओरल फॉर्म में होता था, और साथ ही साथ उसके जो कैरेक्टर्स थे और उसकी जो थीम थी, जो उसका सब्जेक्ट मैटर था, जो उससे रिलेटेड इवेंट्स थे, इट वाज लर्न्ड बाय हार्ट बाय द पीपल, इट वाज लर्न्ड बाय हार्ट बाय द पीपल। इसको लोग जबानी रट लेते थे एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इसको पहुंचाने का काम करते थे। ये सारी बातें मैंने आपको बताया। तो इसकी जो शुरुआत होती है दुनिया में, वो कहां से होती है? होमर की इलियड एंड ओडिसी से होती है। होमर की इलियड और ओडिसी एक तरह से कहा जाता है कि वह पहला प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल है। तो अगर मैं कहूं कि जैसे इटली में होमर 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 ने लिखा और होमर की इलियड और ओडिसी रही है, ऐसे ही इंग्लैंड में बियोल्फ आता है। तो इन दिस क्लास आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द बेसिक फीचर ऑफ एपिक, या how you can divide how you can divide epic, means primary epic, secondary epic or literary epic, all these things not at all, बट माई ऑब्जेक्टिव इज कि इस एज में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस एज में बियोल्फ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 3 पॉइंट आपको नोट करना जरूरी है। नाउ आई वुड लाइक टू इरेज इट। इसके बाद आप देखेंगे कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है। 450 या वाई 1066, वाई एंग्लो और सैक्शन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस एज से आता है कि इस एज के जो लीडिंग पोएट थे साइन वुल्फ, CYNEWOULF, साइन वुल्फ इज द was the leading poet of this age, was the leading LEADR, the leading poet of this age। इस एज के जो लीडिंग पोएट थे वो कौन थे? साइन वुल्फ थे। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू कैन जस्ट गेट दीस पॉइंट्स कि बियोल्फ, बियोल्फ के साथ साथ एक नाम आपको मिल रहा, वो कौन थे? साइन वुल्फ थे। एंड इन व्हाट टाइप ऑफ पोएट ही वाज, you don't need to know more and more, but you have to only hear the name, because we don't find any work of this poet has been prescribed either in graduation or in post graduation. Means I have done graduation, post graduation, PhD, and so many things. You have also done UG, PG, but you didn't get any work of this man is either prescribed in graduation or post graduation, but you have to know the name of this man की वह उस समय के क्या थे? लीडिंग पोएट थे। तो एक पॉइंट तो मैंने आपको बियोल्फ के बारे में बताया, बियोल्फ से रिलेटेड जो पॉइंट था उस पर मैंने डिस्कस किया। 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि बियोल्फ जो है इंग्लिश का पहला एपिक है जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में आता है। फिर मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि बियोल्फ के जो आपका है यह अगर ये प्राइमरी एपिक है तो प्राइमरी एपिक क्यों है? व्हाई दिस इज प्राइमरी एपिक? एक तो उसका आथर अननोन है, उसकी स्टोरीज जो है क्या किया गया था? लर्न किया गया था और ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
and it does not have individual cross. बट यू विल कम टू नो कि व्हाट कि यू विल कम टू नो कि वहां पे जो हम पाते हैं कि उस आर यू गेटिंग माय वॉइस? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? मैं अपना माइक थोड़ा सा, क्या आवाज नहीं जा रही है आपको? कैन एनीवन टेल मी हेलो? या आई वाज सोनाली जी, ओ आर यू गेटिंग माय वॉइस? वॉइस ब्रेक हो रही है। uh, अच्छा नाउ नहीं, अब इस टाइम कैसे, इस टाइम और कोई मुझे इस समय मेरी आवाज आ रही है, चीजें आपको दिखाई पड़ रही है? अच्छा अच्छा ठीक। नाउ इज इट विजिबल? हेलो? जी आवाज जा रही है मेरी? बट आई वाज नॉट गेटिंग योर वॉइस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। या ठीक है, ओके ओके। Just I want to tell you कि when you go with these points, then remember that कि I just told you कि Saint Ulf was the leading poet of this age, and third point to which you have to remember कि there were the two terms Anglo-Saxon. Then remember that these two terms Anglo and Saxon, it refers to whom? It refers to two tribes. It refers to two tribes. जो एंग्लो और सेक्शन है या किसको रिफर करता है? इट रिफर्स टू टू ट्राइब या ट्राइब्स को रिफर करता है। एंड व्हेन इट रिफर्स टू टू ट्राइब्स, देन रिमेंबर दैट कि ये जो ट्राइब्स थे, ये पहले ट्राइब्स थे जिन्होंने क्या किया हुआ है, पूरा इंग्लैंड का पूरा एक स्ट्रक्चर, उसका एक नींव खड़ा किया जिस पर हम बात करते हैं। सो जो वो एज है, उस एज में आपको अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं ध्यान में रखनी है, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। Beowulf, Saint Ulf, and who was Anglo and who was Saxon? ये Anglo और Saxon कौन है, कौन थे? All these things you have to remember. So what did I tell? I just told you कि you can go with these points कि आपको इनको माइंड मेकअप करना है, इनके बारे में हमेशा ध्यान में रखना है। एंग्लो और सैक्सन वे क्या है? वे टू ट्राइब्स है, दे वर द टू ट्राइब्स। इन लोगों ने मिल करके you will come to know the whole chemistry of literature, the culture of England in the means in during Anglo-Saxon period, पूरा इन्हीं लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। सेकेंड जो एज है, जो आज हमें बात करनी है, क्योंकि कृष्णा जी ने कहा कि एंग्लो सैक्सन से शुरू किया जाए, तो जो सेकेंड एज है, उस पार्टिकुलर एज में जो हम आपको बताना चाहते हैं कि दैट इज द मिडिल एजेस। जो एक इंपॉर्टेंट एज है, द मिडिल एजेस, 1066 से लेकर 1450 ईस्वी तक का जो पीरियड है, द मिडिल एजेस। इस द मिडिल एजेस को तीन हिस्सों में बांटा जाता है: एंग्लो नॉर्मन,
1066 से 1350, दूसरा एज ऑफ चौसर 1350 से 1400, एंड द थर्ड इज डार्क मिडिल एज, डार्क मिडिल एज from 1400 to 1450. So remember that when you talk about this particular age, that is the middle ages. This the middle ages refers to what? It refers to Anglo-Saxon. ये तो एक बड़ा एज है जिसमें इसकी ये छोटी छोटी कैटेगरी है या उसका डिवीजन किया गया है. द मिडिल एजेस जो 1066 से लेकर 1450 तक है, इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है. पहला हिस्सा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, दूसरा हिस्सा एज ऑफ चौसर, एंड दिस एंग्लो नॉर्मन पीरियड कवर्ड 1066 से 1350, एज ऑफ चौसर 1350 से 1400 ईस्वी, डार्क मिडिल एज 1400 से 1450. और आज की जो क्लास है उस पे जो हम बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड, हमारा पूरा कंसंट्रेशन इसी पर रहेगा कि यहाँ से रिलेटेड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, नंबर 1 पॉइंट, एंड व्हाट द फीचर स्पेशली फीचर्स रिलेटेड टू लिटरेचर, लिटरेरी सिचुएशन, लिटरेरी मींस जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर डू यू फाइंड इन दिस एज, इस एज में हमें किस तरह का लिटरेचर देखने को मिलता है, उस पर हम बात करेंगे. तो एक जो हमें जो बात करना है या जिन चीजों को हमें रखना है, मैं उस पे बता दूं आपको कि yeah, the particular points which I want to tell you कि when you talk about Anglo Norman period, it covers 1066 से लेकर 1350, 1066, 1350. मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि व्हाट द डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन एंग्लो नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन, उनके टाइटल में. एक ही चीज है, जहां पे सैक्सन था वहां पे रिप्लेस होकर के क्या चीज हो चुका है, वहां पे रिप्लेस होकर के नॉर्मन हो चुका है. यू विल कम टू नो कि जहां पे सैक्सन था वहां पे रिप्लेस होकर के क्या हो चुका है, वहां पे रिप्लेस होकर के नॉर्मन हुआ है. दिस पार्टिकुलर नॉर्मन, इट मींस दैट कि ये जो नॉर्मन है इट्स आल्सो ट्राइब, इट्स द नेम ऑफ द ट्राइब. This tribe replaced who? This tribe replaced Saxon. This tribe replaced Saxon in Norman War, which happened in 1066. Which happened in 1066. 1066 ईस्वी में एक वार हुआ था जिस वार का क्या नाम है, नॉर्मन वार. और जब 1066 ईस्वी में जो वार हुआ था उस वार में आप देखेंगे कि एक और ट्राइब आती है जो किसको रिप्लेस करती है, सैक्सन को रिप्लेस करती है. पहले जब आए थे एंग्लो और सैक्सन दोनों ने मिल करके एक तरह से इंग्लैंड की न्यू, वहां का लिटरेचर, वहां की सारी चीजों को रखा. लेकिन यू विल कम टू नो कि कुछ साल, 100 सालों, मतलब 450 के बाद, अगर मैं 1066 की बात करूं तो लगभग 600 साल के बाद, लगभग 600 साल के बाद, आफ्टर 600 इयर्स, एक और ट्राइब आती है. और वह ट्राइब कौन सी है, नॉर्मन है, जो कि किसको पराजित करती है, डिफीट करती है सैक्सन को इन अ वॉर. और वो उस वॉर का क्या नाम है, 1066, उसमें पराजित करती है. तो हम एक नई इरा का देखते हैं. इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 1066 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका डेट क्यों दिया गया, वाई 1066, क्योंकि 1066 में वॉर होता है और उस वॉर में जो है आप देखेंगे कि ये पराजित होते हैं और उनकी जगह कौन ले लेता है, नॉर्मन ले लेता है. इसलिए इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा गया, 1066 फ्रॉम 1350. उसके बाद चौसर का आना होता है, फिर इंग्लिश लिटरेचर फ्लरिश करता है, ब्लूम करता है, चलता है, दैट इज अनदर थिंग. बट रिमेंबर दैट कि जब आप इस सब पे बात करते हैं तो यहाँ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले मैं क्वेश्चन पर बात करूंगा. उन क्वेश्चंस को लिखवा दूं कि टीजीटी, पीजीटी में, इवन 2005 टीजीटी में, 2013 वाला, 2016 वाला और उसके पहले के
टीजीटी पीजीटी में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज प्ले से रिलेटेड है, ड्रामा से रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ ड्रामा, जिसमें एक चीज होता है मिरेकल प्ले, मिरेकल प्ले। और ध्यान में रखिएगा कि मैं टाइप्स ऑफ प्ले और उसका डिफिनेशन लिख रहा हूं। मिरेकल प्ले क्या है? अ टाइप ऑफ प्ले, a type of play based on the life of सेंट्स। सेंट्स की जिंदगी को लेकर के जो प्ले लिखा गया, सेंट्स की जिंदगी को लेकर के जो प्ले यहाँ पर लाया गया, उस पार्टिकुलर प्ले को क्या कहा गया? मिरेकल प्ले। एंड आई विल टेल यू पूरा उसका कंडीशन, पूरा स्ट्रक्चर कि मिरेकल प्ले मार्केट में कैसे आया, उसके मार्केट में आने के पीछे का रीजन क्या था और तमाम चीजें। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि टीजीटी पीजीटी इवन यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिरेकल प्ले क्या है। तो मिरेकल प्ले की जो स्टार्टिंग होती है, उसके बारे में जो बातें होती है, वह इसी एज में द मिडिल एजेस से शुरू होता है। और द मिडिल एजेस में कौन से पीरियड से? एंग्लो नॉर्मन पीरियड, क्योंकि द मिडिल एजेस का पहला पीरियड एंग्लो नॉर्मन पीरियड है। तो मिरेकल प्ले क्या है? अ टाइप ऑफ प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स। जब सेंट्स की जिंदगी को इमिटेट किया गया, उनकी जिंदगी को नकल की गई, उनकी जिंदगी को लोगों के सामने एक तरह से एक्शन के माध्यम से प्रेजेंट किया गया, तो उस तरह के प्ले को क्या कहा गया? मिरेकल प्ले। तो मिरेकल प्ले अ टाइप ऑफ प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स, जो सेंट्स की जिंदगी पर होता है। एक दूसरा प्ले आया था जिसका नाम है मिस्ट्री प्ले, MYSTERY, मिस्ट्री प्ले। अ टाइप ऑफ प्ले, अ टाइप ऑफ प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट। वह प्ले जो जीसस क्रिस्ट की लाइफ को लेकर के हमारे सामने रखा गया, उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज मिस्ट्री प्ले। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से कि यू विल कम विद दीस पॉइंट्स की मिरेकल प्ले है, मिस्ट्री प्ले है, और एक ऐसा प्ले होता है जिसमें जो है जीसस क्रिस्ट की लाइफ को। और जो मिस्ट्री प्ले था, यह सबसे पहले आया, मिरेकल बाद में आता। अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ प्ले केम फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर, तो फर्स्ट टाइम में जो इंग्लिश लिटरेचर में जो प्ले आता है वह कौन सा प्ले था? मिस्ट्री प्ले। मिरेकल बाद में आएगा, पहले कौन आया? मिस्ट्री। पहले जीसस की लाइफ को ही इमिटेट किया गया। सो यू विल कम टू नो दिस इज व्हाट, दिस इज द मिस्ट्री प्ले। एंड इन दिस यू विल कम टू नो, जो यह मिस्ट्री प्ले है, इस मिस्ट्री प्ले में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि ये दो अवसरों पर इट वाज परफॉर्म्ड, इट वाज परफॉर्म्ड on the occasion of OCCASI, on the occasion of Good Friday and Christmas। दो अकेजन था, गुड फ्राइडे और क्रिसमस के अकेजन पर जो चर्च का प्रीमाइस होता था, जो चर्च के एक तरह से जो है जो सर्वेंट होते थे या सेवक जो होते थे, जो चर्च में रहने वाले लोग होते थे, वो चर्च की प्रीमाइस में टू अकेजन्स पर इस पार्टिकुलर चीज को क्या करते थे? इमिटेट करते थे, मतलब उसको परफॉर्म करते थे। तो जो प्ले है, प्ले दो तरह का, मिरेकल प्ले एंड मिस्ट्री प्ले। मिरेकल प्ले इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स, यह बाद में आता है। मिस्ट्री प्ले पहले आता है। अ टाइप ऑफ प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, इट वाज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ गुड फ्राइडे एंड क्रिसमस। दो अवसर पर आपको डिफरेंस ये जरूर पता करना है कि हाँ उस प्ले को क्या क्या कैसे कहा गया, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले। नाउ मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि उस समय का जो सिचुएशन था उसमें रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरा काम रिलीजन को लेकर के, पूरा काम बाइबल को लेकर के, और जो जो जो, जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वे सब के सब इस पार्टिकुलर चीज को करें या उसमें। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था।
सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसके अलावा जो और प्ले आता है उसका नाम था मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले, व्हाट इज मोरालिटी प्ले? A type of play based on the life of common righteous men. A type of play based on the life of common righteous, RIGHTEOUS, common righteous men, जो आम आदमी थे लेकिन काफी ज्यादा धार्मिक होते थे। उनकी जीवन को लेकर के जो प्ले लिखा गया वह जो है क्या होता था, इसीलिए मैंने एक शब्द लिखा कॉमन राइटियस। आम आदमी जिनकी जिंदगी में धर्म का बहुत इंपॉर्टेंस होता था, जो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से फॉलो करते थे, तो यू विल कम टू नो उस तरह के प्ले को क्या कहा गया, उस तरह के प्ले को मोरालिटी प्ले कहा गया। और एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरालिटी प्ले का एग्जांपल, सबसे पहला मोरालिटी प्ले जो है उसका नाम है एवरी मैन। एवरी मैन इज द फर्स्ट मोरालिटी प्ले, फर्स्ट मोरालिटी प्ले। और जो एवरी मैन इज द फर्स्ट मोरालिटी प्ले, इसका जो आथर है, आथर इज अननोन, आथर इज अननोन। इसका मतलब क्या हुआ, एनोनिमस वर्क है, एनोनिमस, एनोनिमस वर्क। आथर इज अननोन का मतलब एनोनिमस। सो व्हाट आई वांट टू से, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि इस एज में एक तो 1066 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है, नॉर्मन वॉर। जो नॉर्मन थे उन्होंने पहले के जो ट्राइब है जिनका नाम सैक्सन था, उनको उन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो एज है, यह एज क्यों सिग्निफिकेंट है कि इस एज में एक नई ट्राइब को, मैं एक नए ट्राइब को देखता हूं और इस ट्राइब ने किसको रिप्लेस किया है, सैक्सन को रिप्लेस किया। और जब सैक्सन को रिप्लेस किया तो एंग्लो और नॉर्मन की केमिस्ट्री, या ये एंग्लो और नॉर्मन का जमाना था। और एंग्लो और नॉर्मन का जमाना कब से कब तक चला, 1066 से लेकर 1350 तक। मैंने आपको ये बता दिया 1066 में क्या हुआ था, नॉर्मन वॉर हुआ था। फिर मैंने आपसे ये कहा कि पहले मैं ये डिस्कस करूंगा इस एज में कौन कौन से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। बाद में मैं पूरी एज की सिचुएशन आपको बताऊंगा। इस एज में टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चार इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, और एक लास्ट जो बात आती है वो है इंटरल्यूड, INTERLUD। जितने लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, इफ दे टर्न द पेजेस, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है अगर उसको टर्न करेंगे तो उनको मिलेगा कि यह इंटरल्यूड शब्द कई बार पूछा जा चुका है। ये लिटरेरी टर्म का भी हिस्सा है, लेकिन इसका जो इजाद है, इसका आना वहीं से हो चुका था, इसलिए इसको मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। जो इंटरल्यूड होता है, इंटरल्यूड एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। इट मींस बिटवीन द प्ले, इट मींस बिटवीन द प्ले। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंटरल्यूड है यह लैटिन वर्ड है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने लिखा है, बिटवीन द प्ले, प्ले के बीच में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा, यह एक मैं और शब्द लिखना चाहूंगा, और कॉमिक रिलीफ, कॉमिक रिलीफ, this is very important. So what I want to say, what I want to tell you कि interlude जो है, it's a Latin word, it means between the play, and it refers to what, it refers to comic relief. And why comic relief? हुआ क्या था कि पहले जो तीन तरह के प्ले लिखे गए वो सब के सब जो है एक तरह से उनका नेचर क्या था, ट्रेजिक था। चाहे मिरेकल प्ले रहा हो, चाहे मिस्ट्री प्ले रहा हो, चाहे मोरालिटी प्ले रहा हो, यू विल कम टू नो उनका जो नेचर था, उनका नेचर कैसा था, उनका पूरा का पूरा नेचर जो है ट्रेजिक था। क्योंकि उसमें दो बातें दिखाई गई थी। कौन कौन सी दो बातें दिखाई गई थी, क्रूसिफिकेशन, CRUCIFIX, cruci, if I write you can just check this, crucifixion of
Jesus. Sacrification, you will come to know crucifixion, sacrification of Jesus Christ. जीसस क्रिस्ट की जो लाइफ है, उस लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने कैसे अपने आप को फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अपने आप को जो उन्होंने बलिदान किया, कुर्बान किया, तो उसी पैटर्न पर चाहे मोरालिटी प्ले रहा हो, चाहे आपका जो है मोरालिटी प्ले से पहले मिस्ट्री प्ले रहा हो या इंटरल्यूड रहा हो, उन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट वाज द सैक्रिफिकेशन। और दूसरा सबसे बड़ा चीज आप ये पाएंगे कि यह जो सैक्रिफिकेशन है, इसी तीनों प्ले ने बाद में रेगुलर ट्रेजिडी को जन्म देते हैं इंग्लैंड में। व्हेन यू कम टू नो अबाउट गरबडक, उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्लेस आते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर था कि ट्रेजिडी में ट्रेजिक एक्शन होगा, ये बातें अरिस्टोटल बहुत पहले बता चुके हैं, ग्रीक ट्रेजिडी में बहुत पहले से रही थी। लेकिन इंग्लैंड में जब ड्रामा की नींव पड़ती है, तो उसमें जो ट्रेजिक एक्शन था, उसकी जो शक्ल है, वह मोरालिटी प्ले में नजर आती है, मिस्ट्री प्ले में नजर आता है, और साथ ही साथ आपका जो इसमें नजर आता है, आपका मिरेकल प्ले में नजर आता है शुरुआती दौर में। बाद में वह ठीक है रिवेंज ट्रेजेडी के रूप में आया, शेक्सपियर आए, उसके अलावा जो है तमाम तरह की ट्रेजेडीज लिखी गई, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन जो शुरुआती दौर था, शुरुआती दौर में जो उसका शक्ल है, जो रूपरेखा है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, यू विल कम टू नो कि वो इस तरह से चीजें हमारे सामने आती है। तीसरा चीज आप ये ध्यान में रखिएगा, ये जो चौथा पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इंटरल्यूड, इस चौथे पॉइंट ने कॉमेडी को जन्म दिया, COMEDY। अगर ऊपर की तीन चीजों ने ट्रेजिडी को जन्म दिया, ट्रेजिडी को जन्म देने का मतलब ये है कि उसमें ट्रेजिक एक्शन था, तो इंटरल्यूड में कैसा एक्शन था, कॉमिक एक्शन था। कभी कभी होता क्या है कि जब हमारी ट्रेजिडी होती है, तो उस ट्रेजिडी में कुछ ऐसे सीन डाल दिए जाते हैं जो कि जो है उस ट्रेजिक एक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, और हम पार्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं, उस पार्टिकुलर सीन जिसमें कॉमिक एलिमेंट होता है या कॉमिक एक्शन होता है, उस कॉमिक एलिमेंट को कॉमिक रिलीफ कहा जाता है या इंटरल्यूड। Again, I would like to tell you, sometimes you get that in tragedy there are some comic scenes. ट्रेजिडी में कभी कभार कुछ कॉमिक सीन्स होते हैं, वे जो कॉमिक सीन होते हैं, उन्हीं कॉमिक सीन को ही हम क्या कहते हैं, इंटरल्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैकबेथ अगर आप पढ़ेंगे, तो मैकबेथ में जो पोर्ट्रेट सीन है, वह पार्टिकुलर सीन जो है किसका एग्जांपल, दैट इज द कॉमिक सीन का, दैट इज इंटरल्यूड का, वो उसी पर्पस से वहां पे यूज किया गया है। Even you will come to know Hamlet में एक सीन है, that is the grave digger scene. Grave digger scene का ऑब्जेक्टिव या पर्पस लगभग वही रहा है। So these are the points, these are the things जो आपको माइंड में रखना है, या जो आपको समझने की कोशिश करना है कि आखिर इस एज पर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। इस एज पर अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें आ चुकी हैं, तो मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि इंटरल्यूड जो है यह एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है बिटवीन द प्ले या कॉमिक रिलीफ। नंबर वन पॉइंट। उसके पहले मैंने मोरालिटी प्ले के बारे में बताया कि यह आम आदमी के जीवन जो बहुत धार्मिक होते थे, कर्तव्यपरायण होते थे, जो निष्ठा जिनके अंदर थी, ईमानदारी होती थी, उनका जो धर्म के प्रति जो बलिदान था, आम आदमी के प्रति जो उनकी सोच थी कि वो अपने आप को कुर्बान कर देते थे, उसके सब्जेक्ट मैटर, उनकी लाइफ को लेकर के जो प्ले लिखा गया वह मोरालिटी प्ले था। और इसका एक एग्जांपल यूजीसी नेट में भी हर जगह पे पूछा जाता है, एवरी मैन क्या है, एवरी मैन इज अ मोरालिटी प्ले। और जो एवरी मैन है, इसका आथर का नाम नहीं पता, इस वजह से यह कैसा वर्क माना जाएगा, एनोनिमस वर्क। एनोनिमस का जो मतलब होता है कि जिसके आथर का नाम ना पता हो, उस आथर इज अननोन, आथर इज अननोन। तो यू विल कम टू नो ये सारी बातें। उसके पहले मैंने किस पर बात किया था, मिरेकल प्ले पे मैंने बात किया था, मिस्ट्री प्ले पे मैंने बात किया था। अब मैं इसको इरेज करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर जो यह एज है, इस एज में धर्म क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई रिलीजन इज इम्पोर्टेंट, व्हाई सब कुछ जो है धर्म के को लेकर के ही क्यों बातें कही गई है। सो इन आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाई रिलीजन इज इम्पोर्टेंट इन दिस एज। जो मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाई रिलीजन इज इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दैट रिलीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है इस एज में
कि इस एज में देयर आर द टू इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, यू विल कम टू नो दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस रहे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एंग्लो नॉर्मन की बात कर रहा हूँ, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। यह जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था 1066 से 1350, इस पार्टिकुलर पीरियड में पूरी सोसाइटी को रन करने के लिए, पूरे देश को रन करने के लिए, पूरी कंट्री को रन करने के लिए देयर वर टू इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। हर आदमी की जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था कि आदमी बाहर जा ही नहीं सकता था। एक तो क्या था, दैट वाज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्था। दूसरी थी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, INST, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, दूसरा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था इसका जो सेंटर था कोर्ट, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इसका जो सेंटर है चर्च है। अब आप पूरा नेचर समझिए, पूरा केमिस्ट्री समझिए कि चासर कितना बहादुर आदमी थे जिन्होंने इतना काम किया और कुछ हद तक उन्होंने उस समय के धर्म को हमारे सामने ला के रखे। आई वुड लाइक टू टेल यू, लेकिन अभी उससे पहले मैं इस पर बताना चाहूंगा। जस्ट आई वांट टू नो कि आर यू गेटिंग माय वॉइस, कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? Yeah, I got the voice of Sandesh. Okay, okay, okay. So what I want to say is there are the two institutions. One is political institution and second is religious institution. Political institution was led by whom? Political institution was led by court. और कोर्ट से क्या मतलब होगा? कोर्ट का मतलब किंग, कोर्ट का मतलब क्वीन, कोर्ट का मतलब मिनिस्टर्स, कोर्ट का मतलब लैंडलॉर्ड्स। और अगर मैं एक शब्द में मैं यूज करूं कि ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो निजाम है कोर्ट का, किंग्स हो गए, क्वींस हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, कोर्टियर्स, इन्होंने समाज में, इन तीन सब लोगों ने मिलकर के सोसाइटी में जिस सिस्टम को डेवलप किया वह सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी सोच और सामंतवादी व्यवस्था। दैट वाज व्हाट, दैट वाज द फ्यूडल सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, I would like to tell you if there is another system, that is the religious institution, and in this system you will find that there were who? Bishop, churchmen, prioress, monk और कुछ रिलीजियस लीडर रहे होंगे, और कुछ रिलीजियस लीडर रहे होंगे जिन्होंने इस पार्टिकुलर सिस्टम को डेवलप किया। तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में चर्च, बिशप, चर्चमैन, प्रायरेस, so many people you will come to know कि वो लोग रहे। What I want to ask कि हमेशा आप देखेंगे, it's not for the first time I'm going to tell you, हमेशा आप देखेंगे कि रिलीजन का इंटरफेयर पॉलिटिक्स में रहा, पॉलिटिक्स का इंटरफेयर रिलीजन में रहा। You will come to know, always you will see, always you will find there was, I would like to use the word coalition, COALITION, coalition between कोर्ट एंड चर्च। कोर्ट और चर्च के बीच में एक कॉलिशन टाइप का था, एक गठबंधन था। इट वाज नॉट एन अलायंस, इट वाज नॉट एन अलायंस, इट वाज कॉलिशन। सो व्हाट आई वांट टू से, यह जो गठबंधन था यह शुरू में जो है बहुत स्ट्रांग था। कोर्ट भारी पड़ रहा था किसके ऊपर? चर्च के ऊपर। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था वह अपने आदमी से केवल एक ही उम्मीद करता था। वह क्या उम्मीद करता था कि जो भी हमारे आदमी हैं, जो हमारे राज्य में रहने वाले लोग हैं, दे शुड बी लॉयल टू द किंग, वो राजा के प्रति वफादार रहे। राजा जो टैक्स इंपोज करता है उनके ऊपर उसको अदा करते रहे, राजा के खिलाफ कोई रिवोल्ट ना हो। एक बहुत कॉमन बात है, हर जगह पे आप देखेंगे, इवन इन कंटेम्परेरी सोसाइटी, इवन इन
डेमोक्रेटिक नेशन, टैक्स की बात आज भी है, कोई हड़ताल ना करे आज भी है, किसी तरह का रिवोल्ट ना हो आज भी है। ऐसा नहीं कि उस जमाने में था, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे एक राजा है, फिर उनके बच्चे राजा, इस तरह का चलता था। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि किंग, क्वीन, मिनिस्टर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये जो हायरार्की है, इन सारे हायरार्की ने मिलकर के जिस सिस्टम को इजाद किया उसका क्या नाम था, फ्यूडल सिस्टम। और जो फ्यूडल सिस्टम रहे हैं, इस फ्यूडल सिस्टम में जो लाइफ थी वह कैसी लाइफ थी, एग्रेरियन। हमारी जो है जीविका का जो सबसे बड़ा साधन था वह क्या था, एग्रीकल्चर। मैंने 3 शब्द लिखा, फ्यूडल सिस्टम, एग्रेरियन लाइफ, खेतीहर जो मजदूर होते हैं, खेतों पे जो डिपेंड करते हैं, और हमारी अपनी जीविका का जो मेन साधन था वह क्या था, एग्रीकल्चर था। ऐसा नहीं था कि बहुत मार्केट, बहुत ज्यादा बिग बाजार, या यू विल कम टू नो मॉल रोड, जेड स्क्वायर, सच अ कॉन्सेप्ट यू कांट फाइंड एट ऑल, कि पीपल लोअर तबके के लोग और यहाँ पे। और जो सोसाइटी का डिवीजन था, 2 तरह का डिवीजन था सोसाइटी का, एक तो अपर क्लास और एक आपका लोअर क्लास। जो अपर क्लास था, मान के चलिए कि इस अपर क्लास में आपका ए, और इस लोअर क्लास में जो आपके डेली वेजेस थे, जो आपके क्या कहते हैं पीसेंट्स थे, छोटे मोटे, और जो फार्मर्स वगैरह थे, इन सबको आप लोअर क्लास में रख सकते हैं। तो ये इस तरह का हायरार्की थी। दूसरा चीज मैं आपको देखना बताना चाहूंगा कि इधर जो चर्च के लोग थे, चर्च के लोग दे वर इस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स, वे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और किंग, क्वीन, मिनिस्टर दे हैव ऑलरेडी बीन इस्टेब्लिश्ड। ये 2 चीजें आपको हमेशा माइंड में रखना है। जब आप एंग्लो नॉर्मन को पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि बिशप, चर्चमैन, प्रायोरेस, मॉन्क, दे वर इस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स, बट द किंग्स हैव बीन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड। इट मींस दैट कि जो 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 पावर ऑफ सेंटर था, या जो जो लोग पावर में थे, या जो लोग सेंटर में थे, पूरा पावर इनके हाथों में होता था, पूरी शक्ति, पूरा एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर का, साथ ही साथ पूरे निजाम को चलाने का, वो सब कुछ इनके हाथों में था। जब आप ये चीज देखते हैं कि ये चीज इनके हाथों में था, या ये लोग यहाँ पर थे, तो इन लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। एक राजा मरे, उत्तराधिकार को लेकर के जो है क्या हुआ कि दूसरे लोग कहे मैं राजा बनूंगा, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होते होते इनकी शक्ति कमजोर होती जा रही है। तो यू विल फाइंड व्हाट यू विल फाइंड कि व्हाट डिक्रीजिंग ऑफ पावर, यू विल फाइंड व्हाट कि यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑफ पावर है। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑफ पावर है। जो चर्च है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। चर्च के लोग जो थे वो शुरू में अपने आप को, जैसे उन्होंने स्टैब्लिश किया, एक बड़ा चर्च बनाए, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जितने छोटे छोटे चर्च थे, सारे चर्च को एक मेन चर्च से जोड़ लिया गया। जब उन सब चीजों को एक एक मेन चीजों से जोड़ लिया गया, तो जोड़ने के बाद यू विल कम टू नो कि उनका एक अलग जो है रिलीजन के नाम पर चल रहा। आज भी वी सी इन आवर लाइफ की हाउ रिलीजन प्लेज अ वाइटल रोल, अ सिग्निफिकेंट रोल, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रिलीजन अदा करता चीजों को। समझिए आपकी आज भी जो है एक पूरा एक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा रिलीजन का खड़ा है, आपस में एक दूसरे से कनेक्शन उनका है। तो यू विल कम टू नो। तो हुआ क्या कि ये जो चर्च के लोग थे, ये राजा के पास आते हैं। पहले जो है, एक तरह से अगर मैं मिडिल स्ट्रक्चर को देखूं तो वहां पे इस चीज को कि देवर नॉट इन पावर, बहुत शक्ति नहीं थी, तो वे लोग राजा के पास आते हैं कि हमारा अपना चर्च है, हम गांव के लोगों को जो है धर्म के पॉइंट ऑफ से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो हमें जो है जो थोड़ी बहुत जमीन है चर्च के आसपास की, वो अगर मिल जाए तो वो बेहतर होगी। उनको जमीन मिली। जमीन के बाद ये हुआ कि कुछ वहां पे मजदूर वगैरह भी खेतों में काम करने के लिए, या उसके बाद कुछ सैनिक भी मिल जाए सुरक्षा के लिए, तमाम चीजें। तो अगर आपको जो है 3 चीजें दे दी जाए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको लैंड दे दिया जाए, आपको सोल्जर दे दिया जाए, और आपको वर्कर दे दिया जाए, और आपको एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया गया, इस एरिया में आपका रहना है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस एरिया के राजा आप खुद बन बैठे। आपके पास जमीन भी हो गई, आपके पास सैनिक भी हो गए, आपके पास वर्कर भी हो गए, ये आप खुद ब खुद, आप अपने जो है क्या है, आप जो आपका जो अपना घर है, उस घर का राजा कौन, आप ही है।
तो जब आपके पास लैंड आ गया, जब आपके पास सोल्जर आ गए, जब आपके पास वर्कर आ गए, तो आपके पास ये हो गए। और जो आपके अंडर में काम करें, दे वर लॉयल टू योर्स, मतलब वे आपके प्रति लॉयल थे, दे वर लॉयल टू यू। सो व्हाट आई वांट टू से कि गेटिंग लैंड, गेटिंग सोल्जर, गेटिंग वर्कर, इट मींस दैट दे वर स्ट्रेंथनिंग देमसेल्व्स। ये सब चीजें पा करके जो इधर के लोग थे वे अपने आप को मजबूत कर रहे थे, लेकिन ये सब लोग आपस में लड़ करके अपनी शक्ति को कम कर रहे थे। एक जमाना ऐसा था जब ये लोग राजा के पास शक्ति मांगने के लिए आते हैं कि हमारी हेल्प करिए। एक जमाना ऐसा आएगा जबकि जो किंग जो है इनके पास जाएंगे कि आप मेरी हेल्प करिए, क्योंकि हर गांव में छोटा छोटा चर्च बना, हर गांव के लोगों को चर्च के पास जमीन हो गई, सोल्जर हो गए, वर्कर, और फिर वे अपने आप को मेन चर्च से जोड़ लिए। वेटिकन सिटी का आप देख लीजिएगा, पोप जॉन पॉल। सो वेटिकन सिटी को ये अपने में इसीलिए दर्जा दिया जाता है कि वो दुनिया का सबसे छोटा देश है, जबकि वो कोई मुल्क नहीं है, लेकिन उसका पूरा निजाम एक देश जैसा है, पोप जॉन पॉल जहाँ पे रहते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, यू विल कम टू नो, ये पूरा एक सिचुएशन एक दिन में यह स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ, कई सौ सालों की जर्नी, कई सौ सालों का सिचुएशन। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू विल फाइंड हियर, व्हाट यू विल फाइंड हियर कि एकदम से सिचुएशन पलटने जा रही है। सिचुएशन कैसे पलटने जा रही है? जो सेंटर ऑफ पावर ये था, अब सेंटर ऑफ पावर यहाँ से हट करके यहाँ पर। पहले ये लोग इनके पास आते थे, अब ये लोग इनके पास जा रहे हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज द नेचर, दिस इज द सिस्टम ऑफ नेचर, दिस इज द सिस्टम ऑफ नेचर, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। तो जो मिडिल एज था, उस पार्टिकुलर मिडिल एज में चर्च का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहा है। और लास्ट में ये कंडीशन आती है कि किंग बिकेम पपेट इन द हैंड ऑफ चर्चमैन। अगर आपको इसी पर एक प्ले लिखा गया है, सेंट जॉन, अगर एक प्ले है, इफ यू गेट चांस, इफ यू गेट टाइम, तो यू हैव टू रीड सेंट जॉन, जो लिखे हुए हैं आपके जॉर्ज बर्नार्ड शाह। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने इसी थीम को, इसी बैकग्राउंड को लेकर के सेंट जॉन लिखा हुआ है। आप ये समझिए कि जब बिशप इतने शक्तिशाली हो गए, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरी चीजों पर कंट्रोल किया, और फिर जो जो पनिशमेंट हाथ में था किंग के, वह इनके हाथ से निकल करके किसके हाथ में चला जाता है? चर्च के हाथ में चला जाता है, और तमाम गलत चीजें शुरू हो जाती है मिडिल एज में। तमाम गलत चीजें आप ये देखेंगे शुरू हो जाती हैं, और आपको कुछ नहीं, अगर आपने जो लोग जो ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, अगर वो चासर का पढ़े होंगे, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, तो उनको वहां पे समझ में आएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चासर ने ब्रेवरी दिखाई है। और क्या ब्रेवरी दिखाई है? जब वो प्रायोरिस के बारे में बात करते हैं, जब वो मांग को लेकर के बात करते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक तो मैं चासर की बात, मैं चासर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चासर कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स उनका एक वर्क है, और इस कैंटरबरी टेल्स में डायरेक्टली और डायरेक्टली मैं दो कैरेक्टर का नाम लिखना चाहता हूँ। एक कैरेक्टर है प्रायोरिस, और दूसरी कैरेक्टर है माउंट। रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव, रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव। आप यहाँ पर पाएंगे ये जो धर्म के ठेकेदार थे, किस हिसाब से धर्म की गलत व्याख्या कर रहे थे, कैसे लोगों को जो है क्या कर रहे थे, लोगों को धर्म के नाम पर वो लोगों को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो चासर ने उसका थोड़ा सा एक थोड़ा सा प्रेजेंट किया हुआ, क्योंकि ओपन होकर के नहीं लिखा जा सकता था, चासर की लाइफ को भी खतरा था, उस समय का जो निजाम था, जो स्ट्रक्चर था, इतना ओपन होकर के नहीं लिख सकते थे। So you will come to know how these churchmen, how these religious representatives exploited the people at the name of religion. They misinterpreted the Bible. They just sold the ticket to get a seat in heaven. यहाँ तक की नौबत आ गई थी, टिकट बेचा जाने लगा कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको टिकट खरीदना होगा। कर्मा इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, आपका जीवन में ये नहीं इम्पोर्टेंट है, टिकट इज ओनली इम्पोर्टेंट। सो ये सब चीजें ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कि मेडिवल एज में, मिडिल एजेस में धर्म के नाम पर कितना एक्सप्लॉइटेशन किया गया। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं यहाँ पे लिखूंगा। एक आदमी है जिनका नाम है जॉन वाइक्लिफ, WICLIFF, जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ ने 1382 में ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन
into English. He was set into fire. What I want to tell you कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम जॉन वाइक्लिफ है और जॉन वाइक्लिफ ने 1382 में बाइबल का ट्रांसलेशन किया था और उस ट्रांसलेशन में ये नौबत आई थी कि जब बाइबल का ट्रांसलेशन लैटिन से इंग्लिश में हुआ तो बिशप लोगों को ये डर लगने लगा रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव को कहीं बाइबल को ओरिजिनलिटी लोगों को पता न चल जाए जो हमने निजाम खड़ा किया है शोषण का कहीं वो धराशायी ना हो जाए इस वजह से केवल इस काम की वजह से जॉन वाइकलिफ को क्या कर दिया जाता है आग के हवाले कर दिया जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो मिडिल एज था उसमें रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव कैसा रोल प्ले कर रहे थे किसी भी आदमी को आग के हवाले कर दे रहे हैं जादू के नाम पर टोने के नाम पर इसके नाम पर बहका करके पूरा एक उनका स्ट्रक्चर था वे डिसाइड करते थे हु इज राइट हु इज रॉन्ग आप उनके खिलाफ इवन यू कांट से सिंगल वर्ड सो पूरी आज की क्लास में जो मैंने आपको डिस्कस किया दो चीजें मैंने डिस्कस की हैं एक तो आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मिरेकल प्ले हिस्ट्री प्ले मोरालिटी प्ले थोड़ा सा मैंने जॉन वाइकलिफ पर बात किया चौसक पर बात किया इंटरल्यूड पर बात किया all these things so just I want to know ki do you want to say something कोई कुछ perhaps yeah do you want to say something कोई कुछ कह रहा था you are not getting my voice जॉन वाइकली एक्चुअली मैं जो पता नहीं क्यों आपकी आवाज मुझे बहुत साफ नहीं आ रही आप लोगों की आई डोंट नो बहुत स्लो आ रही है सो जॉन वाइकली की स्पेलिंग है JOHNWICLI कहीं पर एफ ई मिलेगा कहीं पर डबल एफ ई या इस तरह का चीजें होगी WICLI डबल एफ ई मैंने लिखा हुआ है हो सकता है स्पेलिंग एफ ई भी हो क्योंकि मेडिकल एज भी इस तरह का चीजें चीजें यू विल कम टू WICLIFFE now I want to close this recording or I just want to know if you have any query if you have any question related to today's class क्योंकि you have to join another class मुझे जहां तक लगता है मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है और अगर किसी को कुछ कहना है and I am just seeking ki so many participants today I have registered 72 but there are 147 someone has shared लास्ट में मैडम लिखा है कि सेट इनटू फायर ही वाज सेट इनटू फायर आपके हवाले कर ही वाज सेट इनटू जी मैडम हेलो हेलो जी राजेश जी yeah if you want to say anything then it's all right otherwise I have to close this session uh, because I'm not getting your voice I'm not getting your voice yeah let me use earphone something there is a problem in my neck band I think this is why I'm not getting but let me use earphone
Yeah. What do you want to say now? You can discuss. You can discuss. If you have any query, you can tell. Yeah. या नहीं, जो बाइबिल थी मैडम, वो जो है हिब्रू, ग्रीक और लैटिन तीनों में थी, केवल हिब्रू और ग्रीक में ही नहीं थी। बाद में जो है हिब्रू से लैटिन में किया जाता है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। शुरू में जब आई हुई है तो वह हिब्रू और ग्रीक में रही है। उसका ट्रांसलेशन लैटिन में हुआ था, लैटिन से जाकर के जो है किस में हुआ, इंग्लिश में हुआ है। हिब्रू और ग्रीक का ट्रांसलेशन अदर लोगों ने किया है। जान परवे हैं, कुछ और लोग हैं, यू विल कम टू नो, उनका नाम बाद में बताएंगे जरूर। नहीं, जो आप बता रही हैं कि हिब्रू और ग्रीक में अनडाउटली द बाइबल वाज इन, जिसको आप जो है अगर आप देखेंगे कि ग्रेट बाइबल के भी नाम से जाना गया है। ग्रेट बाइबल के अलावा जो है जान परवे एक रहे, उन्होंने भी ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो बाइबल के कई ट्रांसलेशंस रहे, लेकिन जो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन आता है जॉन वाइक्लिफ ने लैटिन से इंग्लिश में किया, क्योंकि उस समय जो लैटिन थी वह ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और ऐसा नहीं था, तो ऑफिशियल लैंग्वेज होने की वजह से केवल जो पढ़े लिखे लोग थे वही लोग उसको समझ पा रहे थे, आम आदमी लैटिन को नहीं जान पा रहा था। और इंग्लिश भी कोई इंग्लिश नहीं थी, उसमें डायलेक्ट यूज किया जाता था। चासन ने मिडलैंड डायलेक्ट यूज किया, कोई ये बहुत मॉडर्न एज जैसी इंग्लिश नहीं थी। तो जब एक काम जो है वो करते हैं जॉन वाइक्लिफ, तो जॉन वाइक्लिफ के इस काम की वजह से जो है उनको क्या किया जाता है, ही वाज सेट इनटू फायर। या आई थिंक शिल्पी मैडम, यू वर आस्किंग समथिंग। शिल्पी जी, आर यू हियर? गुड इवनिंग मैडम। या नहीं, especially when you come to know such a life, then you will find that ki these two lives have been governed by political institution, but directly or indirectly you will find the establishing of the churches in countryside area also. And in countryside area, when the church was established in countryside area, you will come to know that the main source of their livelihood was also what, agrarian life। क्योंकि अगर आप सोचिए कि मैं तो इस समय की बात कर रहा हूँ, आपने एक ऐसे पढ़ा होगा सर रॉजर एट चर्च करके, इफ यू हैव रिमेम्बर। जो टाइम था, किसका टाइम था, जोसेफ एडिशन का, रिचर्ड स्टील का, और मैं 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। 18th सेंचुरी में भी आप देखेंगे सर रॉजर एट चर्च जो ऐसे है, उस ऐसे में ये बताया गया है कि सर रॉजर जो है वो गांव के मुखिया हैं। वहां पर एक चर्च है, और उस चर्च के जो पादरी हैं उनका और जो है उस स्क्वायर के बीच में, मीन्स सर रॉजर के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और वो लोग जो है संडे को स्पेशल प्रेयर होता है, गांव के सारे लोग चर्च के कैंपस में आते हैं, सर रॉजर और जो बिशप है उनको ट्रेंड करते हैं। वहीं बगल का एक गांव है जहां पर जो है क्या है कि गांव के मुखिया और जो बिशप के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वहां के लोग न तो उतने रिफाइंड है न पॉलिश्ड है। तो बार बार 18वीं शताब्दी में भी जो है क्या किया गया, गांव की बातें, एग्रीकल्चर की बातें, पीजेंट्स की बातें, उनको लेकर के चीजें वहां पर हो रही है। तो यू विल कम टू नो कि ये जो लाइफ था, स्पेशली जो गवर्न किया गया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, चूंकि लैंडलॉर्ड आते थे, फ्यूडल सिस्टम था, टैक्स वसूलते थे, टैक्स के नाम पर उस समय क्वाइन वगैरह तो था नहीं, अनाज के रूप में ही ले चीजें जाती थी। ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। या एग्रेरियन लाइफ मीन्स लाइफ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ओके। या या नहीं, व्हेन, if you find कि if there is a option the middle ages, then you have to go with the middle ages, because Anglo-Norman is the part of the middle age. If you find the option the middle ages, if there is no option of the middle age, if you find only Anglo-Norman period, then you have to go with Anglo-Norman period. First you have to go with the middle ages, first you have to go with the middle ages। या जो मेन एज है वह द मिडिल एजेस है। मैंने देखिए, मैंने शब्द जो लिखा द मिडिल एजेस, मतलब मिडिल एजेस के कई डिवीजन है, प्लूरल में है। और वो द मिडिल एजेस का तीन हिस्सा है, एक एंग्लो नॉर्मन पीरियड, दूसरा एज ऑफ चौसठ, तीसरा डार्क मिडिल एज।
ये तीनों उसका हिस्सा है। ओके। या एनी अदर पर्सन, क्योंकि मैं आवाज नहीं सुन पा रहा था, तो इफ यू हैव एनी डाउट तो आई एम हियर, और मैं आराम से आपकी क्वेरी को या आपकी चीजों को आई कैन सॉल्व हियर, यू कैन जस्ट आस्क। या या Yeah, actually, I just told you कि in morning I am going with writer and in the evening I am going with history of English literature. If you have two copies, so it will be highly helpful to all of you, और उससे चीजों को समझना आसान हो जाएगा। मैं तो या पैशन ऑफ Passion of Christ, if you have gone with Passion of Christ, maybe it might be related to, but actually remember that ki, when you talk about miracle play or mystery play, especially mystery play, in mystery play there is the life of Jesus Christ, and in miracle play there is the imitation of the life of saints. That movie में अगर दिखाया गया तो श्योरली वो मिस्ट्री प्ले का हिस्सा हो सकता है। मिस्ट्री प्ले एक टाइप ऑफ प्ले है, या कोई प्ले का नाम नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे ट्रेजिडी होता है, जैसे कॉमेडी होता है, या टाइप ऑफ प्ले होता है, it's not the name of the play. इन द सेम वे मिस्ट्री प्ले इज अ टाइप ऑफ प्ले। जैसे मैंने आपको बताया मोरालिटी प्ले, तो मोरालिटी प्ले एक टाइप ऑफ प्ले है, उसके अंदर एक मैंने एग्जांपल दिया था एवरी मैन। क्योंकि जो मिस्ट्री प्ले है और जो और तमाम तरह के एग्जांपल उससे रिलेटेड रहे, उसके कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन वे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें आई, बाद में उसको रिटन फॉर्म दिया गया, वो सब शुरू में परफॉर्म किए जाते थे, बाद में कुछ लोगों ने उसको रिटन फॉर्म दिया। क्योंकि जो चर्च मैन होते थे, चर्च मैन को पूरा रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव होते थे, आम आदमी को एजुकेट करने के लिए, उनको इंटरटेन करने के लिए, उनके अंदर धर्म की महत्ता को बताने के लिए जीसस क्रिस्ट की लाइफ को एक आइडियल लाइफ माना गया, और उनको उससे जोड़ा गया, सारी चीजें धर्म से जोड़ी गई। तो उस जमाने में इस तरह की चीजें होती थी, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन इन द हैंड ऑफ द चर्च मैन। देन यू विल कम टू नो कि जो भी हम बातें कर रहे हैं, या टाइप्स ऑफ प्ले, या कोई इस नॉट द स्पेसिफिक प्ले की कोई नाम है। दूसरा चीज, जिस मूवी की आप बात करें, बिकॉज आई हैव नॉट सीन, लेकिन अगर वह जीसस क्रिस्ट की लाइफ से है तो श्योरली उनकी लाइफ को लेकर के बातें कही जाएंगी। तो वह उसका अगर उसमें क्रूसिफिकेशन है, sacrification है, if you find this subject matter, तो you will come to know, या उससे related, या या ओके। या अरे डजेंट मैटर, you didn't enter, it's your fundamental right, you can ask questions, and I am very happy whenever you ask question, yeah। या Yeah, forms of literature, madam, that's over. I have gone with forms of poetry, forms of drama, forms of novel, rhetoric, and prosody. But one thing I would like to add here, if you have not taken any class related to, because you joined me late, आपने मुझे join किया, I know because you also told me. तो if I get time तो मैं एक बार दोबारा उस पर आऊंगा, because we have enough time। दूसरा चीज कि मैं चीजों को अच्छे ढंग से लेके चल रहा हूँ, बट ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या जितने लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया हुआ है उन, या उसमें मेरी, या वहां पर भी है, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी मेरे अवेलेबल है सारे वीडियोस। वहां पर आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं, उसको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। या मैडम जी, सोनाली जी। मैम देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट की फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने अभी चार चीजों का नाम लिया कि फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, यही चार चीजें होती हैं।
और आपको याद होगा, मैंने इसके अलावा रेटरिक और प्रोसोडी पढ़ा था। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर आप फॉर्म्स ऑफ या इफ यू गो विद फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में जितने भी उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो चीज पढ़ाया गया। फॉर्म्स ऑफ प्रोज में जो है आपको आपका पीरियोडिकल ऐसे था, फॉर्मल ऐसे था, इनफॉर्मल ऐसे था, बायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी था, मीमोयर था और ट्रेवलॉग था, इसको ये सब चीजें पढ़ाई गई थी। आपको याद होगा नावल में भी ऐसे पढ़ाया गया था, ओरिजिन ऑफ द नावल, फोर्थ व्हील्स ऑफ द नावल, रीजनल नावल। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, ओके मैडम, ओके ओके ओके। And yeah, yeah. There is Nabbu Khan ji. Nabbu Khan ji, I just want to know कि you didn't join my class in morning because you have problem. Can you tell me कि have you any query this time? इ- नहीं, मैं समझ गया था। या, यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे अवेलेबल है। देवेश भाई भी हैं, धर्मप्रिया जी हैं, सारिका मैडम है। सारिका मैडम, डू यू वांट टू से एनीथिंग कुछ? अच्छा ठीक है, कृष्णा जी। या नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे पूछा गया हो या कोई स्टोरीज उसका हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ हो जो बहुत सिग्निफिकेंट हो या सिलेबस में रहा हो, जिसको मैं नाम लूँ तो तुरंत आपके माइंड में वो चीज आ जाए। कम से कम एक चीज ये होता है कि अगर मैं किसी चीज का नाम लूँ जो आप उससे गुजर चुके हैं, वो चीजें आ जाए तो वो चीजें होगी। बाकी आप बताएंगे, आई विल जस्ट आई कैन जस्ट टेल यू, लेट मी आल्सो सी, मुझे भी देखना पड़ेगा उसको लेके थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, एग्जामिनेशन में नहीं, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं, एग्जामिनेशन में आना चाहिए। तो आई थिंक नाउ वी शुड बाइंड अप दिस सेशन, बिकॉज यू हैव टू ज्वाइन अनदर क्लास, हो सकता है केडी सर की। या पूनम जी, जी जी मैडम। जी मैडम। या हम्म। कॉमन राइटियस मैन, RIGHTEOUS। कॉमन राइटियस मैन, RIGHTEOUS। RI, yes, I'm sharing my, you will come to know whiteboard, then you will be able, RIGHTEOUS, कॉमन राइचियस मैन। जो राइचियस मैन है, दिस इज धर्म प्रायण, जो धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, जिनकी जिंदगी में धर्म एक बहुत अहम रोल करता हो, दैट इज कॉमन राइचियस मैन। या यू कैन लीव इट मैडम, एनी वन, दोज हु वांट टू लीव दे कैन लीव, नो नो नीड टू ज्वाइन, बिकॉज जिसका क्वेरी है बस उसी के लिए मैं बैठा हूँ। या नहीं, उससे रिलेटेड पीडीएफ मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि जितनी बातें चल रही हैं वो सब की सब मेरे आने वाली किताब में होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मैं इतना भेज करके फिर आपको मैं ये कहूं कि आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, या सारी बातें वहां पर अवेलेबल होंगी, तो 15-20 दिन में वो किताब आ जाएगी। तो जो चीज आपको इजिली किताब में मिल जाएगा, उतना आप पीडीएफ प्रिंट आउट में भी खर्च करिए, फिर मेरी किताब पे भी खर्च करिए, फिर उसको कई टुकड़ों में इधर उधर पिनअप करिए। ज्यादातर चीज आप कोशिश करिए कि उसको नोट करने के लिए क्लास को। जी, बाकी वो किताब से मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, किताब में मिल जाएगा। या एनी अदर क्वेरी और क्वेश्चन किसी? कल शाम को, या कल शाम को हम लोग 64 पे बात करेंगे। और एक चीज और की, मॉर्निंग में हमें जल्दी ज्वाइन करना, क्योंकि कल जो है मैं बड़ी क्लास नहीं ले पाऊंगा मॉर्निंग में। हो सकता है कि आधा घंटे या 45 मिनट्स की मैं क्लास को लूंगा, क्लास रहेगी लेकिन हाफ आवर का हो सकता है क्लास हो, बिकॉज मुझे थोड़ा सा कॉलेज जल्दी पहुंचना 9 बजे तक, तो मैं अगर 8:30 बजे तक क्लास ले लूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो आई थिंक यू ऑल हैव टू बी देयर ऑन टाइम। ओके, एंड नाउ यू ऑल कैन सेंड योर फीडबैक कि
जो ये चीजें हैं, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो सब चीजें ठीक है या नहीं ठीक? ठीक, ओके।